ओके चलो फिर आज हम स्टार्ट कर दे पहला सेशन अपना। सो एज फार एज आर प्लानिंग इज कंसर्न, तो हम लोग पहले फिनेंशियल विल स्टार्ट फर्स्ट विद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन फिनेंशियल अकाउंटिंग। दो सब्जेक्ट है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एज यू ऑल सेड के यू आर कंफर्टेबल विद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट इज इजी। So what we'll do is first we'll try to complete cost accounting as soon as possible, as earliest as possible, and the maximum time which is the left or the balance time which will be available with us, we'll utilize that time for financial accounting. So we'll go more in detail as far as financial accounting is concerned. As far as cost accounting is concerned, it is not that tough, it is easy. So chalo, we will understand about the syllabus first. Cost accounting, the name of the subject is cost accounting. Okay, and we have in all 6 topics. Okay, now we have 6 topics. First one is cost control accounts. Cost control accounts. Second one is contract costing. Contract costing. Third one is process costing. Process costing. Fourth one is marginal costing. Introduction to marginal costing. In TY BCom, it is just an introduction. In MCom, you will be studying it in detail. So even process costing. Process costing, you also have weighted average cost capital method, yeah, weighted average cost method in MCom. In TY BCom level, process costing is very, very easy. Okay, very, very easy. Then we have, so I'll write here, introduction to marginal costing. Introduction to marginal costing. Okay. Then fifth one is standard costing. Again, here we have introduction. Introduction to standard costing. Introduction to standard costing. And these two topics are very, very important as far as exam is concerned. From exam point of view, marginal costing, standard costing, and process costing. If you do these 3 chapters, okay, and any one from 1 and 2, you will get 100% marks. You will get full marks out of marks. So plan accordingly. Okay. And the last one is the theory subject. It is called as some emerging concepts of cost accounting. Concepts of cost accounting. So this is the syllabus. Okay. Now, so we have 6 topics. We have 6 topics. Out of these 6 topics, first 5 topics are practical topics. And the 6th one is theoretical, theory based. It's theory based, so it's theoretical. Okay. This was about the syllabus. So what will we do today? Today we'll be starting with one topic. Today's session is very, very important. I will complete the concepts today. Tomorrow, day after tomorrow, maybe within 3 to 4 days, we will wind up this topic called as introduction to standard costing. First, I will teach you introduction to standard costing. Then I will be teaching you introduction to marginal costing. Then I will be teaching you process costing. Then I will be teaching you cost control accounts. Then I'll be teaching you contract costing. And finally, I'll be teaching you some emerging concepts of cost accounting. So this will be our flow of teaching. Okay. So let us start first with introduction to standard costing. We'll start our today's session with the chapter called as introduction to standard costing. That is chapter number 5. If you are referring Manan Prakashan, then page number 350 आसपास रहेगा. डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा बुक है, लेटेस्ट है कि पुराना है, लेकिन उसके आसपास रहेगा. क्वेश्चंस वगैरह सब सेम है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होता है. एंड आज नहीं, कल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा.
दैट विल बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जितने दूंगा उसी में से एग्जाम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम हुई तो। ठीक है, ऑनलाइन है तो एमसीक्यूज रहते तो फिर कुछ मतलब ये है रिटेंशन की बात नहीं रहती है, लेकिन ऑफलाइन रहेगा तो सर कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे हम लोग, अपने को आएगा सॉल्व करने के लिए। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना टेक्स्ट बुक में, उसमें से आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वही सिर्फ आपको एग्जाम के लिए करने, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आइए विल स्टार्ट। सबसे पहले एक बेस बना देते, एक स्ट्रक्चर बना देते सर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। I'll put the heading. I'm starting with the first chapter now, which is called as Introduction to Standard Costing. Introduction to Standard Costing. Is everything perfect? Am I audible? Is video visible? Yes, And is sir. visible? Why? Because I have joined the today's session through mobile. Okay. आइए स्क्रीन के ऊपर we'll start our today's session without wasting any time. Okay, so this is our heading. Okay, introduction to standard costing. अब ये सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है? सर अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल सर होता क्या है, राइट? There is one company, there is organization. Now we are under cost accounting subject, right? तो कॉस्ट अकाउंटिंग में वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाइप मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें ना जो भी कंपनी होती है, जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो मैनेजर रहता है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज, वी विल बी डीलिंग इन दिस चैप्टर विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट। Which departments will be dealing in the chapter? बताओ जरा, बताओ। Production. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड बोलो परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट। तो जो भी परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा, वो अपने एम्प्लॉइज को, या जो भी फॉर एग्जांपल ओनर रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, वो मैनेजमेंट मैनेजर्स को, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा, जो भी परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा, उनको टारगेट्स देगा। he will give targets to the managers कि you are heading this department, so this is the target for you. If you accomplish, you will be rewarded. अगर आपने वो टारगेट फुलफिल किया, आपको अवार्ड मिलेगा, you will be rewarded, you will be awarded. अगर आपने वो टारगेट फुलफिल नहीं किया, then you will be penalized. उसका जो नुकसान हुआ, जो भरपाई हुई, आपको बेयर करना पड़ेगा। इससे कंपनी को पता चल जाता है कि हाउ मच मैनेजर इज पोटेंशियल, हाउ मच आर एम्प्लॉइज आर एफिशिएंट, एंड हाउ मच आर ऑपरेशंस, जो अपने काम चल रहे वो इफेक्टिव काम कर रहे। इसलिए एक जब मैनेजमेंट, जब किसी मैनेजर को एक काम एलोकेट करता है, ठीक है, एक टारगेट देता है, उस टारगेट को इस चैप्टर में नाम दिया गया, वी कॉल इट एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब टारगेट कॉस्टिंग। उसका इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या होता है? टारगेट कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग, टारगेट। तो ओनर्स लोग, मैनेजमेंट लोग मैनेजर्स को क्या दे रहे हैं? टारगेट दे रहे। अब फॉर एग्जांपल चलो एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एवरीवन विल फोकस ऑन द स्क्रीन, यहां वहां नहीं देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट दिया गया, मतलब उसको हम लोग ने कहा कि यू हैव टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो जाहिर सी बात है कि इतने अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेस से, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस क्या होते हैं अपनी कंपनी में? रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल को यूज करते हुए, डायरेक्ट लेबर को यूज करते हुए
आपको फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं इस नोटबुक की। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू प्रिंट दिस नोटबुक, तो उसके लिए पेज लगेगा एज अ रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, ठीक है, ये ऊपर का जो प्लास्टिक रहता है लेमिनेशन वो लगेगा, पिंस लगेंगे, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सब लगेगा, तो वो मटेरियल में आ जाता है, दैट इज अ मटेरियल। अच्छा, ये नोटबुक बनाने के लिए गड़ी काम करी मजदूर लोग लगेंगे, उनको भी हम लोग कुछ पेमेंट करेंगे, उसको लेबर कहा जाता है, वी पे देम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ठीक है, थोड़ा रिवीजन हो गया आप लोगों के लिए। तो ये यूज करते हुए आपको टारगेट दिया गया कि यू हैव टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ नोटबुक्स, ये टारगेट दिया गया। ये क्या दिया गया? टारगेट। इसे इस चैप्टर में कहा जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। नाउ वी एज ओनर्स या मैनेजमेंट we will check whether that target is fulfilled by our manager or not. कैसे चेक करेंगे? we will compare this targeted amount या targeted units produced by the manager with the actual units produced. तो स्टैंडर्ड को इस चैप्टर में हमेशा हमेशा हम लोग कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल फिगर्स, विद द एक्चुअल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल एक्चुअल में उसने सिर्फ 8,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन हुआ सिर्फ 8,000 यूनिट्स। हम लोग ने टारगेट दिए थे कि भाई इस साल में या इस महीने में आपको 10,000 नोटबुक्स प्रिंट करनी है, बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोड्यूस करनी है। बट मैनेजर ने, प्रोडक्शन मैनेजर ने कितने प्रोड्यूस करा के दिखाए? 8,000, मतलब 2,000 का डिफरेंस आया है। 2,000, फिर से एक बार यहाँ पर देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। 2,000 का क्या हुआ है? 10,000, ये 10,000 माइनस 8,000 is equal to 2,000 units. What is this? आम जबान में layman's language it is called as difference. डिफरेंस। इस चैप्टर में इस डिफरेंस को कहा जाता है वेरिएंस। वेरिएंस कि क्यों ये डिफरेंस आया, और जो भी डिफरेंस होता है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल। एक बार फिर से, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड, बिटवीन द टारगेटेड एंड द एक्चुअल फिगर इज कॉल्ड एज वेरिएंस। इज कॉल्ड एज व्हाट? अरे बोलो ना यार। वेरिएंस। इज कॉल्ड एज वेरिएंस। इसे कहा जाता है वेरिएंस एनालिसिस। इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तीसरा नाम है वेरिएंस कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस कॉस्टिंग। अरे बात समझ में आ रही क्या? वरायंस नहीं है, वेरिएंस है। वरायंस नहीं है, वेरिएंस है, वेरिएंस इसको बोला जाता है। एक बार अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पर, वेरिएंस। अब आप लोगों का दिमाग बना देता हूँ फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू। अब करेंगे बहुत सारे क्या क्या आपके सिलेबस में है, कट टू कट बात करूंगा, डिटेल में जाऊंगा, नॉलेज भकूंगा, मतलब नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड पर समझेगा, एग्जाम ओरिएंटेड वाला जितना नॉलेज चाहिए, लॉजिक चाहिए, वो बराबर से बता रहा हूँ। पूरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिर्फ स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। पूरे चैप्टर में से आपको डिफरेंस के भाई किधर हम लोग पीछे हट रहे, मैनेजर ने क्या कमी की। 10,000 का टारगेट दिया था, सिर्फ 8,000 उसने प्रोड्यूस किया। कभी कभार हो सकता है मैंने 10,000 का टारगेट किया, जोरों शोरों में जोश से मैनेजर ने काम किया और 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। इस अमाउंट को भी वेरिएंस ही कहा जाएगा। इस अमाउंट को भी, व्हाट इज द डिफरेंस अगेंस्ट 2,000, बट ये 2,000 माइनस में डिफरेंस है। अब नया कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको एक, कि सर अगर डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस हो तो उसे कहा जाता है फेवरेबल। दैट वेरिएंस इज कॉल्ड एज फेवरेबल। फेवरेबल। और अगर वो डिफरेंस बुरा है, खराब है, कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, इट इज कॉल्ड एज अनफेवरेबल, जिसका दूसरा नाम होता है एडवर्स। एडवर्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन है, टारगेट हम लोग ने दिया था कितना? 10,000। टारगेट कितना दिया था? 10,000। तो अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा कोई प्रोड्यूस करता है तो अच्छी बात है, फेवरेबल है कंपनी के लिए। अगर ऐसा है तो 2,000 के आगे लिखा जाएगा एफ। समझ में आता है कि हाँ ये अच्छा डिफरेंस है,
ये जो वेरिएंस, ये जो डिफरेंस निकल के आया है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल, दैट इज गुड फॉर द कंपनी, दैट इज फेवरेबल फॉर द कंपनी। सर इसमें भी मैंने माइनस किया 10,000 में 212, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टारगेट क्या था 10,000, ये तो एडवर्स था पहले वाला। मैंने टारगेट दिया था 10,000 प्रोड्यूस करो, उसने सिर्फ 8,000 प्रोड्यूस किया, तो कम किया ना प्रोड्यूस, कम किया तो बुरी बात है कंपनी के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडवर्स, एडवर्स लिखेंगे। दूसरे केस में देखो क्या हुआ, ये एक एग्जांपल नंबर 1 फॉर एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 2 है फॉर एग्जांपल समझने के लिए। मैंने टारगेट दिया था कि भाई, टारगेट दिया कि 10,000 प्रोड्यूस करना है, एक्चुअल में उसने कितना प्रोड्यूस किया, एक्चुअल में सिर्फ 12, सिर्फ नहीं ज्यादा प्रोड्यूस किया, 2,000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, कंपनी के लिए फायदा है, फायदा है तो फेवरेबल, गुड, गुड मतलब फेवरेबल, तो एफ लिखिए, और फिर इन दोनों को सम करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि वेरिएंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो वेरिएंस कैन बी फेवरेबल, ये कॉन्सेप्ट है, एंड वेरिएंस कैन बी एडवर्स, ये कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, बस समझ में आई। अगर मैं कॉस्ट की Yes, बात sir. करता, अगर मैं कॉस्ट की बात करता, हाँ, मैं यहाँ पर ना टर्म्स लिखता हूँ, यहाँ पर टारगेट अमाउंट या स्टैंडर्ड, अब टारगेट हटा दो, टारगेट को रिप्लेस कर दो आप किससे, स्टैंडर्ड वर्ड से, ठीक है, इस चैप्टर में पूरा स्टैंडर्ड यूज करेंगे हम लोग, टारगेट समझाने के लिए मैंने आपसे कहा, तो टारगेट एंड एक्चुअल अमाउंट, लेकिन ये दिमाग में बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। मैंने बोला था कि भाई आपका खर्चा, खर्चा जाने दो, प्रोडक्शन का एग्जांपल ले लेते कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपका खर्चा निकल के आना चाहिए 10, 10, ये मैंने टारगेट दिया, 10 से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, एक यूनिट प्रोड्यूस होने के लिए 10 तो होना चाहिए, टारगेट के लिए दिया। एक्चुअल में जो खर्चा हुआ एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वो 12 हुआ। अब बताओ ये अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी। बुरी, व्हाई? बिकॉज बुरी वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। ये अगर सेल्स की, प्रॉफिट की, इनकम की बात करते और मैंने टारगेट 10 का दिया रहता, चलो सेल्स लेते फॉर एग्जांपल, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहे पर यूनिट, और कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 10, मैंने टारगेट दिया कि भाई 10 में आप ये सेल करो प्रोडक्ट, मैनेजर ने 12 में सेल किया, अब बोलो फायदा के नुकसान, कंपनी के लिए अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात, फायदा। अच्छी बात। तो ये जो डिफरेंस निकल के आएगा, जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज फेवरेबल, तो उसके सामने एफ लिखेंगे। अच्छा, ये कॉस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर 10 टारगेट दिया था कि भाई कॉस्ट 10 होनी चाहिए, मैंने कॉस्ट 12 कर दी, कॉस्ट खराब चीज होती है, वो मेरी बढ़ गई, मतलब इट इज लॉस फॉर, लॉस मतलब एडवर्स, प्रॉफिट मतलब फेवरेबल, ऐसे भी बोल सकता हूँ, फेवरेबल मतलब प्रॉफिट, या ब्रेक इवन। सर ब्रेक इवन क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको ब्रेक इवन कहते हैं। पर सर लॉस होता है देन इट इज एडवर्स फॉर द कंपनी, लॉस होता है देन इट इज एडवर्स फॉर द कंपनी। सर समझ में आई बात? ओके, तो 10 माइनस 12 2, ये 2 रुपया है लेकिन एडवर्स है, एंड 10 माइनस 12 2 रुपया लेकिन ये फेवरेबल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes, अरे बोलो ना यार, sir. यस सर। अगर इधर तक समझ में आया होगा तो मैं Yes, आगे sir. बढ़ देता हूँ फिर। अब चलो सीधा कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाते हैं, सीधा या कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, याद करने की जरूरत नहीं, याद भी चाहिए तो करेंगे, लेकिन ऐसे बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, और अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे आज ही। आज ही आप लोग, ये चैप्टर आप लोग को बहुत इजी लगेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर आपको भी लिखना है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था, एक बेस बना दिया कि ये चैप्टर में क्या होने वाला है, ओनर हूं मैं मेरे मैनेजर को बोलूंगा भाई इतना टारगेट तुझे दिया, वो हम लोग चेक करेंगे, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने वाले चैप्टर, एक्चुअल के साथ भाई एक्चुअली उसने कैसे परफॉर्म किया,
अरे बात समझ में आई। रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट परचेस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, परचेस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, परचेस डिपार्टमेंट। व्हाई? बिकॉज परचेस एट कॉस्ट, परचेस किसके हिसाब से हम लोग करते हैं, परचेस कौन करता है, परचेस डिपार्टमेंट। प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये एक इसके बारे में बात की, दूसरे इसके बारे में हम लोग ने बात की, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग ने बात की, ठीक है। ओके, आइए अब मैं आप लोगों को, सर सर बट कॉस्ट इनडायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जा सकता है ना, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी ये दिया रहेगा ना टारगेटिंग कि आपको इतनी कॉस्ट रखने की है प्रोडक्ट की, उससे आगे नहीं, उससे कम रहेंगी तो चलेगा, वो प्रॉफिट है अपने। अब देखो कैसा रहता है, ये कंपनी है मेरी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंपनी, ओके, ये कंपनी है, ये मेरी कंपनी है। इस कंपनी में सबसे पहले तो रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल वो परचेज किया जाता है। मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पर, जब मैंने परचेज डिपार्टमेंट बोला और कॉस्ट की बात करी। अभी देखो मैंने रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कॉस्ट लगेगी, तो रॉ मटेरियल परचेज करने की कॉस्ट, उसके रिलेटेड जो भी हैंडल करने वाला जो डिपार्टमेंट रहेगा वो परचेज डिपार्टमेंट, वो परचेज डिपार्टमेंट। अब कैसे होता है कि कंपनी को रॉ मटेरियल लगता है फ्रीक्वेंटली, ऑर्डर्स कब और कितनी ऑर्डर करते, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने एक चैप्टर था मटेरियल कॉस्ट, उसमें ईओक्यू का कॉन्सेप्ट देखा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मुझे एक एग्जांपल आप बता दो, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक सिंपल, ये नोटबुक्स मुझे फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स करने हैं या मैं मंगाता हूँ, बिजनेस का करता हूँ, कौन सी कॉस्ट कम मुझे निकलेगी और कौन सी कॉस्ट ज्यादा, बताओ। अगर मैंने 10,000 नोटबुक्स के, मैं साल में फॉर एग्जांपल 1 लाख नोटबुक्स मंगाता हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, कितना, 1 लाख साल में, लेकिन ये मैं 5 बार मंगाता हूँ, समझ में आ रही है, मतलब 20,000 नोटबुक्स मंगाता हूँ 5 बार, और पांचों बार मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 ट्रक करने पड़ते हैं, और 2 ट्रक का मुझे कम से कम 20,000 देना पड़ता है, 10,000 10,000 मिनिमम अमाउंट समझो इतना। तो 10,000 एक ट्रक का, तो 5 बार कितना, 50,000 मेरा खर्चा होता है। दूसरा, आपको मैं ये, अगर आप अगर परचेस मैनेजर हो तो ये भी डिसीजन ले सकते हो ना, अरे साल में मैंने कैलकुलेट किया, एक्सपीरियंस में थोड़ा दिमाग लगा देता हूँ कि साल में 1 लाख खर्चा मुझे करना है, मतलब 1 लाख नोटबुक्स लगती है, 20-20 हजार इंस्टॉलमेंट में मंगाता हूँ, मेरा 50,000 ऐसे ही जा रहा है, उससे चेक काम कर देता हूँ, 1 लाख साल में तो लगती है, तो 1 लाख मंगा के रख देता हूँ एक ही बार में, तो 50,000 की जगह में भी बड़ी बड़ी लॉरी किया तो 10,000 नहीं, लेकिन 20,000 में पूरी की पूरी नोटबुक्स आ जाएगी, और उसमें वो डिस्काउंट भी देगा, चलो 20,000 पकड़ो, इसका मतलब 30,000 मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 30,000 में सेव कर सकता हूँ जो मेरा खर्चा होता था, मतलब रॉ मटेरियल परचेस करने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में क्या कर सकता हूँ, कम। तो यहाँ पर जब कॉस्ट की बात करता हूँ मैं परचेस डिपार्टमेंट की, तो कौन सी कॉस्ट बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल को परचेस करने की कॉस्ट, ठीक है। अब आता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये रॉ मटेरियल आ गया, अच्छा, ये परचेज डिपार्टमेंट इस रॉ मटेरियल को फॉरवर्ड करता है किसके पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये रॉ मटेरियल हैंड ओवर करेगा, भाई ये लो प्रोडक्शन करो। अब आता है पिक्चर में कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट 1 था, अब ये डिपार्टमेंट 2 हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कॉस्ट निकालेगी, लेकिन वो कौन सी कॉस्ट निकालेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये माल रॉ मटेरियल कच्चा, ये पेपर रहेगा, ये सब पेजेस रहेंगे, पेजेस में लाइंस नहीं रहेंगे, तो प्रोडक्शन प्रोसेस का ये पार्ट है, पहले तो पूरी पेज की शीट रहेगी, उसको कटिंग होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसका कॉस्ट कम करना चाहिए हमें, या एफिशिएंटली करना चाहिए, लाइनिंग्स है, ड्रॉ करना, इंडेक्स है पेपर, ये बाइंड करना है, अटैच करना है, ये वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख लेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये नोटबुक प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, उसके बारे में जो डिसीजन लेगी या हम लोग चेक करेंगे, जो डिफरेंस निकालेंगे, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट निकालेंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या। इसी के साथ साथ हाँ कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है और कितने सोल्ड करना है, मतलब प्रोडक्शन कितने यूनिट्स बाहर आ गए, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेना देना। अच्छा, अगर मैं यूनिट्स की बात करूं लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करूं, तो कौन सा डिपार्टमेंट, परचेज, क्योंकि ऑर्डर कौन करता है, परचेज डिपार्टमेंट। आने के बाद रॉ मटेरियल को हैंड ओवर करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, भाई लो अभी प्रोड्यूस करो। बात समझ में आई।
तो कॉस्ट जब बोलूंगा ऐसा जरूरी नहीं कि वो परचेज डिपार्टमेंट की बात करूंगा, डिफरेंस तो अपने को समझाना पड़ेगा। रोल समझो कि परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा, रॉ मटेरियल को परचेज करना, खत्म। वो परचेज डिपार्टमेंट का रोल होता है। अच्छा, अतः इस चैप्टर में ओनर्स लोग काम क्या देते परचेज डिपार्टमेंट को, भाई तुझे ये जो रॉ मटेरियल खरीदना है ना वो एट बेस्ट रेट खरीदना है। ऐसा ना हो कि बाजू में अच्छे रेट में, कम रेट में ये माल मिल रहा था और तूने महंगा माल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महंगा लिया यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर मुझे पता चल जाता है कि यही पेज यही क्वालिटी मुझे दूसरी जगह से 5 रुपया कम में मिल रहा है, 10 रुपया, तो बाकी अगर तूने गलती की रहेगी ना तो उसको तुझे पिनलाइज करूंगा, वो तुझे तेरी जेब से लाना पड़ेगी, तेरी सैलरी से कट हो गई। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो परचेज यस सर। डिपार्टमेंट का रोल रॉ मटेरियल परचेज करना, उसके रिलेटेड उसको चेक करेंगे हम लोग इस चैप्टर। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रोल क्या, यूनिट्स। भाई अगर इनपुट आ गया, मतलब परचेज डिपार्टमेंट ने 1000 यूनिट्स दे दिए तुझे, 1000 शीट्स दे दिए, तो तू कितनी नोटबुक बना रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। आउटपुट कितना आ रहा है, वेस्ट कितना निकाल रहा है। 1000 में से फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल वेस्टेज ऐसा हो जाता है कि 200 या 100, लेकिन 800 नोटबुक तो बन के आनी चाहिए, 900 नोटबुक तो बन के आनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड हम लोग ने टारगेट दिया। अगर तू 900 नहीं निकाल पा रहा है भाई, तो तेरे पे मार रहेगी, सैलरी से पैसा कट जाएगा। बस समझ में आ रही है? देखेंगे आगे के जैसे बढ़ेंगे जैसे समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझने की कुछ बात नहीं है। अब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसमें तो कुछ जरूरत भी नहीं रहता है, ठीक है। आइए, तो मैं अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आता हूँ। अब मैं सबसे पहले देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइम कॉस्ट होती है वो मटेरियल होती है। रॉ मटेरियल ही नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो मटेरियल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो वेरिएंस निकालना सीखेंगे वो मटेरियल कॉस्ट का निकालना सीखेंगे। किसका? मटेरियल कॉस्ट का। उसके बाद किसका सीखेंगे? लेबर। उसके बाद ओवरहेड्स। बात समझ में आई? इतना ही है, चैप्टर फिनिश। तो आज ही मैं कॉन्सेप्चुअली चैप्टर फिनिश कर दूंगा, कल परसों प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर फिनिश, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर। अब देखोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक, आ जाइए। तो मैं आता हूं आप लोगों के ऊपर, सबसे पहला फॉर्मूला लेके आप लोगों के लिए, वो मटेरियल का लेते, चलो मटेरियल वेरिएंस, ओके। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप लोगों को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सब यूसेज वेरिएंस तो आपके सिलेबस में नहीं है, सब यूसेज वेरिएंस मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, अभी से आपको लिखना है। वो सब एक्सप्लेनेशन था, आपका माइंडसेट बना दिया, पहला लेक्चर था, थोड़ा बहुत आपका माइंड बनाना, अपना चैप्टर क्या है किसके बारे में बताना जरूरी रहता है, तो वो मैंने बता के हो गया। अब आते हैं सर पहला कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज मटेरियल वेरिएंसेस। फटाफट फटाफट से लिख लेना मेरे साथ साथ, मटेरियल वेरिएंसेस। 10 मिनट में अपना सेशन खत्म होगा, तो फिर से ज्वाइन कर लेना। मटेरियल वेरिएंसेस, ओके। सर इसके अंदर कितने वेरिएंसेस हम लोग सीखने वाले हैं टीवाई बीकॉम लेवल पे? सिर्फ 3, 1, 2, 3, फिनिश, खत्म। ऐसे ही आज हम लोग परफेक्ट बनेंगे इस वेरिएंस में, परफेक्ट। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने दो, आएगा अपने। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज के आज में मार्क करवा दूंगा, कुछ पेंडिंग नहीं रखेंगे, साथ साथ होते जाएगा। ओके सर, आइए शुरू करते। सबसे पहले मटेरियल, साथ साथ लिखेंगे फटाफट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर सेकंड इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, ओके जी। एंड सर थर्ड, मटेरियल मटेरियल यूसेज, ठीक है ना, यूसेज, ये यू है, यूसेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस।
आइए एक एक करके यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। सिंपल सी बात है यार, इस चैप्टर में क्या करना है मैंने आप लोगों को क्या बताया था? स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस कर दो, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस कर दो आप लोग, बराबर है? तो एक मिनट यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉस्ट है। तो मैं फॉर्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल। वेरिएंस चाहिए इस चैप्टर में, डिफरेंस तो चाहिए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट क्या कर दूंगा मैं? माइनस। सिंपल सी बात है, मटेरियल चल रहा है तो इसलिए मटेरियल ले लूंगा, मटेरियल की कॉस्ट। लेबर रहेगा तब लेबर की कॉस्ट, फॉर्मूला सब सेम। तो देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला दूध पीता बच्चा भी बताएगा सर, अगर उसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करने का, फिर वेरिएंस मिल जाता है, डिफरेंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। सिंपल। सर स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस, अगर मैं स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? चलो एक एक करके यहाँ पर डिस्कस ही कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख ही देते हैं, काम कर देता हूं इसको। फर्स्ट मटेरियल, एग्जाम्पल के साथ साथ ले लेते, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैं यहाँ पर लिख दिया। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अब सर कभी कभार ना ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एग्जाम में डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, हालांकि दिया हो नहीं दिया हो, एक मैंने तरीका निकाला है कि हर क्वेश्चन में आप लोग टेबल बनाने वाले हो, और वो टेबल बनाने के बाद सब कुछ मिल जाता है अपने को। ये अभी जो बताने वाला वो क्या एग्जाम का प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेजेंटेशन भी एक चीज होती है ना कि ये लिखना चाहिए एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, वरना कुछ जरूरत नहीं पड़ती, अपना आंसर डायरेक्ट आ जाता है। जब क्वेश्चन करेंगे आज आज ही, तब आपको समझ में आ जाए। लेकिन चलो है, अपने सिलेबस में टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या सर? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर साइड में कॉन्सेप्ट तैयार कर देता हूं आपको इस ढक के अंदर। यहाँ पर देखो, इस क्लाउड के अंदर आ जाइए। अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि मुझे 100 नोटबुक्स, 100 नोटबुक्स की मुझे कॉस्ट चाहिए, मैंने क्या कहा आप लोगों से, क्या मांगा? 100 नोटबुक्स की कॉस्ट। 100 कॉस्ट। आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप पूछोगे सर एक नोटबुक की कीमत बताओ पहले, एक नोटबुक कितने रुपए में मिलती है? मैंने कहा चलो एक नोटबुक 50 में मिलती है, तो 100 नोटबुक कितने की? तो कॉस्ट जो होती है हमेशा, टोटल कॉस्ट फाइंड करने का जो तरीका होता है या फॉर्मूला होता है, वो कैसा होता है कि भाई जितनी क्वांटिटी है उतनी लेंगे हम लोग क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उस नोटबुक के प्राइस से। प्राइस कितनी है? 50। एक नोटबुक की कीमत 50 है, अरे एक नोटबुक की कीमत 50 है, इसलिए 1 इंटू 50 इज इक्वल टू 50 आंसर आया। अब 100 नोटबुक की कीमत निकालनी है, कॉस्ट निकालनी, तो मैं क्या करूंगा? 100 नोटबुक्स मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि एक की कीमत 50 है, ये एक नोटबुक की कीमत 50 है, बोला 100 की कॉस्ट कितनी है? 100 इंटू 50, तो 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 5000। 5000। इसे कहते हैं हम लोग कॉस्ट। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू या लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया कैसा डिराइव होता है फॉर्मूला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना से याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार मैंने बता दिया, आप याद रख लोगे। सर कि कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, बताओ, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। यहाँ पर देख लिया ना, प्राइस पर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अब आते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर। सर अगर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अच्छा, कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फाइंड कर रहे हैं ना, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी
मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। बन गया फॉर्मूला। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कुछ हाई फंडू नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड वर्ड क्यों किया? स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं ना सर। तो ये किधर से मिलेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। सर ये किधर से मिलेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। सिंपल। सर नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? आएंगे अभी। सर हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम इजी, सबसे इजी चैप्टर है। ओके, माइनस तो माइनस लिख दिया। सर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? सर अभी तो हमारे दिमाग में आ गया, कॉस्ट मतलब कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। सर ये कौन सी कॉस्ट फाइंड करें? एक्चुअल। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अच्छा, बस इतनी सी बात है कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फाइंड करना है तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एसक्यू इंटू एसपी, एक्यू इंटू एपी। अच्छा ऐसा है क्या? इतना इजी है। ओके सर, समझ में आ गया सर। तो ये फॉर्मूला बन गया सर। हाँ यही फॉर्मूला बन गया। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट या एससी भी लिखा जाता है, और ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ओके, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म को जाने दो। कॉन्सेप्ट या मीनिंग आपको समझ में आया होगा, या ये जो फॉर्मूला है वो समझ में आया होगा। इतना समझ में आया? यस सर। Yes. सिंपल सी बात है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट का वेरिएंस मतलब डिफरेंस। वेरिएंस मतलब दोनों को माइनस करना है, डिफरेंस। वेरिएंस मतलब हम लोग ने सीखे डिफरेंस, डिफरेंस बस। तो स्टैंडर्ड में से मैं क्या करने वाला हूँ? स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को क्या करने वाला हूँ? माइनस। अब ये क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्या लूंगा? कॉस्ट, माइनस एक्चुअल भी क्या लूंगा? कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस है कौन सा? मटेरियल। तो स्टैंडर्ड मटेरियल का कॉस्ट लूंगा, एक्चुअल भी मटेरियल का कॉस्ट लूंगा, खत्म। सर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करूंगा। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों का डिफरेंस। हो गया, इतना ही है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छी तरीके से। बात समझ में आई? ओके सर। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस समझ में आ गया। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस सिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस सीखेंगे। फिर से ज्वाइन करना है अभी। चलिए।